पेज पेज है। एक्साइटेशन तो बस रीड are bosonic in nature with frequency omega related to this k square. Omega is proportional to k square. It means what is the s value? 2. मैंने कहा था ना omega proportional to k power s. s का वैल्यू कितना हो गया? 2. In the large wavelength limit, if chemical potential is the behavior of a specific heat at low temperature, behavior of a specific heat at low temperature, specific heat जो होता है low temperature पर वो कैसे behave करता है? बोसोन का at low temperature proportional to T power D by S. D का वैल्यू है 3, S का वैल्यू है 2, कितना हो गया? 3/2. ये समझ में आ गया? T power 3/2. आगे in the Debye model of a specific heat, which of the following holds true? क्या चाहिए? Debye model में क्या चीज है? Phonon frequencies are treated as independent of wave vector. Phonon की frequencies independent of wave vector ली जाती है. Low temperature specific heat proportional to TQ होती है. Is this correct or wrong? A. This is wrong. आगे चलो. Electron repulsion is key in gradient and low temperature specific heat is proportional to this. गलत. Phonon frequencies are taken to have the sound wave like dispersion and low temperature specific heat behave as TQ. Is this correct? Sound wave dispersion, sound like dispersion क्या होता है? हमने जो कैलकुलेशन करी थी उसमें क्या यूज किया था? We have used this omega proportional to k. तो ये सही है गलत है? ये सही है। आगे specific heat due to lattice vibrations is temperature independent. ये गलत है। ये कब होता है? Temperature independent. When temperature is very high, then it is correct. Phonon frequencies are treated as independent of wave vector and low temperature specific heat behaves as TQ. ऐसा तो पहले और भी नहीं था। A and D ये सेम है ना? ठीक है, आंसर क्या सही है? C. According to Debye model, internal energy of solid at temperature T close to absolute zero varies as. बताइए. B. आंसर होगा B. क्यों? It is talking about internal energy. Internal energy में एक पावर ज्यादा होगी या नहीं? Yes. Talking about U. D by S plus 1. T power 4. U किसके proportional होगा? T power 4. Then only C किसके proportional होगा? CV. TQ. तो किसके बारे में बात कर रहा है? इंटरनल एनर्जी या सीवी? इट इज टॉकिंग अबाउट यू. यू में क्या होगी पावर? बी. ओके ठीक है ना? चलो आगे. 60 क्वेश्चन. एट लो टेंपरेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल इज फाउंड टू डिपेंड ऑन टेंपरेचर एज दिस. दो बिहेवियर है उसके अंदर. उसके अंदर दो बिहेवियर है. देयर आर टू बिहेवियर. D power 3/2 and TQ. ओके. Where A and B are constant, this material has. भाई इसमें दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं ना जिनका बिहेवियर है. इसमें दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं जिनका ये बिहेवियर है. तो ये कह रहे हैं इनमें कौन कौन है? वन फर्मियोनिक एक्साइटेशन विद डिस्पर्सन रिलेशन ओमेगा पावर 4. ओके. अनदर इज बोसोनिक एक्साइटेशन विद ओमेगा प्रोपोर्शनल टू. क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें ओमेगा प्रोपोर्शनलिटी क्या बनेगी? जिसमें पावर 3/2 है. ओमेगा प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर. पावर 3/2 प्लस BCQ. इसमें अगर हम पावर देखें तो दिस वन k स्क्वायर ओमेगा प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर है. और इसमें क्या है? ओमेगा प्रोपोर्शनल k है. और दोनों ही क्या है? बोसोनिक है या फर्मियोनिक है? कोई बोसोनिक. दोनों बोसोनिक. तो व्हिच वन इज करेक्ट? D. D ऑप्शन है.
अभी किया था ना पीछे, t पावर 3 by t वाला क्वेश्चन, इसमें उल्टा है। देखो क्वेश्चन नंबर 55 में ओमेगा प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर दिया था, t पावर कितना आया था 3 by 2, उसका अपोजिट है क्वेश्चन, तो वो तो नहीं होगा, दोनों वो तो नहीं होगा। At low temperatures in Debye approximation, contribution of phonons to the heat capacity of two-dimensional solid. Here, Debye approximation, Debye theory किसके लिए लगती है? Acoustical phonon या optical phonon? Acoustic. Acoustical phonon. D is 2. S कितना है जब acoustical phonon की बात हो रही है तो? 1. S is 1. तो specific heat किसका proportional होगा? Two-dimensional solid. T square. T square. D by S. It is D by S. TV is proportional to T square. Okay? तो T square होगा two-dimensional. Okay? इसका example कौन हो सकता है? अगर lattice specific heat graphite की देखी जाए, graphite. If we talk about, मैंने कहीं पर आपको ये बात बताई होगी, for graphite. Lattice vibration के हिसाब से graphite कितना dimensional treat होगा? 2 dimensional. तो graphite, ठीक है? D should be 2. Dimension should be taken as 2. Okay? तो low temperature behavior कैसा होता है graphite में lattice specific heat का? Low temperature behavior graphite के लिए होगा क्या? कि lattice would be T square. अब चलो पहले अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बताता हूँ. In order to estimate the specific heat of phonon, the appropriate model to apply. Einstein model for acoustic phonon, Debye model for optical phonon. This is wrong. Einstein model for optical phonon, Debye model for acoustic phonon. Correct. Einstein model for both, Debye model for both. ये दोनों गलत है. Correct one is Einstein model for optical phonon and Debye model for acoustical phonon. Okay? अब देखिए जरा. At low temperature, हम कहते हैं according to experimental results, the lattice specific heat ठीक है, this lattice specific heat varies as Tq at low temperatures. लो टेम्परेचर पर लैटिस स्पेसिफिक हीट Tq के साथ वेरी करती है, ठीक है? बट ये जो टोटल लैटिस स्पेसिफिक हीट है वो किसके साथ कम होनी चाहिए? अगर देखा जाए तो टोटल लैटिस स्पेसिफिक हीट किसके साथ कम होनी चाहिए? इट वुड बी T लैटिस acoustical का T lattice acoustical plus T lattice optical, ये सब होना चाहिए टोटल स्पेसिफिक जैसे लिखते हैं. अब बिहेवियर किसका क्या है? इस वाले का बिहेवियर लो टेम्परेचर पर क्या है? एट लो टेम्परेचर दिस बिहेवियर इज Tq, whereas दिस बिहेवियर इज एट लो टेम्परेचर. इसका बिहेवियर क्या है? ये है ना, तो ये कह रहे हैं ना आइंस्टाइन मॉडल लगता है इससे ऑप्टिकल फोनोन पर. ओके, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहते हैं T क्यूब से वैरी करता है. इसका मतलब क्या है? कौन से फोनोन की स्पेसिफिक हीट डोमिनेंट होती है लो टेम्परेचर पर? अगर हमें ये बिहेवियर दिखता तो हम कहते हैं ऑप्टिकल फोनोन की स्पेसिफिक हीट, ठीक है, डोमिनेंट होती है. बट बिहेवियर ये वाला दिखता है. टोटल स्पेसिफिक हीट कैसे वैरी करती है? टोटल स्पेसिफिक हीट का जो बिहेवियर है वो कैसा है? टोटल का T क्यूब. ये एक्सपेरिमेंट जैसा बताते हैं. इट मींस कौन सी डोमिनेंट है? Acoustic वाली, acoustical वाली. तो सी लैटिस स्पेसिफिक हीट के दो कंपोनेंट हैं. कौन कौन? अकॉस्टिकल ज्यादा होता है किससे? ऑप्टिकल. ठीक है, क्या होता है ये मिलता है। ठीक, तो टी क्यू बिहेवियर फाइनल बिहेवियर है,
लेट इज स्पेसिफिक हीट का फाइनल बिहेवियर क्या है लो टेम्परेचर पर, T2. ओके टाइप क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट या डेंसिटी ऑफ मोड. तो देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ मोड, ठीक है, तो हम लिखते हैं ऐसे dN/dy. ओके अच्छा ये हो गया. इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोड पर फ्रीक्वेंसी. पर तो हो गया यूनिट पे. पर यूनिट ठीक. अगर हम बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट की तो क्या होता है, वो थोड़ा सा फर्क होता है. तो लिखते हैं डी से dN/dt. तो ये होता है नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट एनर्जी. ऊपर है फ्रीक्वेंसी और नीचे एनर्जी. एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ज्यादा फर्क नहीं होता. एनर्जी ई होता है एच क्रॉस ओमेगा. तो मतलब प्रोपोर्शनलिटी का फर्क नहीं पड़ेगा. ई इज एच क्रॉस ओमेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी का फर्क नहीं पड़ता. अब देखिए जो डेंसिटी ऑफ स्टेट की प्रोपोर्शनलिटी होती है, वैसे तो मैं सीधा निकाल ही सकता हूं इसको. अगर मुझे पूरा निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कंप्लीट इसका एक्सप्रेशन निकालना हो तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको ऐसे करता हूं dN/dt एंड देन dk/d ओमेगा. आप जानते हैं ना ये करना. अगर आपको पूरा एक्सप्रेशन निकालना हो, फुल एक्सप्रेशन, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे. अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या करेंगे आप, dN/dt करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ये करते हैं. फुल एक्सप्रेशन निकालना होगा. अगर प्रोपोर्शनलिटी निकालनी हो तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है. प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे आप जानते हैं, d ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू ओमेगा पावर d/s-1. d ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू, आई एम नॉट सेइंग इक्वल. अगर इक्वल निकालना तो पूरा सॉल्व करो, अगर प्रोपोर्शनल निकालना तो इससे काम चल जाएगा. वैसे ही क्या है, de डेंसिटी ऑफ स्टेट का एनर्जी पर डिपेंडेंस जो होगा वो क्या होगा, d/s-1. मैं पीछे क्या लिख रहा था, व्हाट आई वाज राइटिंग बिहाइंड स्पेसिफिक हीट पे क्या लिख रहा था, आई वाज राइटिंग दिस d/s. यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के ऊपर d/s-1. तो अब देखते हैं इसमें d क्या है. सो ये क्या लिखता है, क्यूबिक क्रिस्टल कितने डायमेंशन में, 3D. 3D is given by optical phenomena, is given by this. h वैल्यू क्या है, बोलो. 0. नहीं 2. देखो इसको ऐसे लिखिए, इसको आप ऐसे लिखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको ऐसे लिखिए, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा इज इक्वल टू a के स्क्वायर. लिख सकते हैं क्या इतना, लेट्स लिख सकते हैं ना. तो इसमें h कितना आया, 2. 0 नहीं है भाई. फ्रीक्वेंसी तो सारी एक साथ ले लेंगे ना, तो h वैल्यू कितना है, 2. तो फ्रीक्वेंसी की तरह काम कौन कर रहा है, हियर व्हाट इज वर्किंग लाइक फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा कर रहा है ना, h is 2 d is 3. तो बताओ क्या बना एक्सप्रेशन, डेंसिटी ऑफ मोड या डेंसिटी ऑफ स्टेट, बताओ क्या बन गया इस क्वेश्चन में. d ओमेगा फ्रीक्वेंसी है ना, तो d ओमेगा निकालिए. कितना बना, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा. ओमेगा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा कर रहा है. कितना पावर, हाफ. कितना पावर है ना, 3/2 माइनस 1. ये पावर बन रहा है. विच ए ऑप्शन पे. ओके, अगर पूरा निकालने के लिए बोलता तो उसको ये भी बताना पड़ता है यहाँ पर कि कितनी डायमेंशन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सॉलिड या व्हाट इज द वॉल्यूम, ये सब बताना पड़ता है. ओके हो गए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो रिमेंबर इट.
सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन्स इन वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू वेव वेक्टर। क्या लिखता है देखो, फोनोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेव वेक्टर। आगे, इफ n इज नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स, c इज स्पीड ऑफ फोनोन्स। तो बताइए ओमेगा प्रोपोर्शनल टू k है तो क्या बनेगा इसकी प्रोपोर्शनलिटी, c के बनेगी नहीं, ओमेगा इक्वल टू c के, क्योंकि क्या क्या देता है, स्पीड ऑफ फोनोन क्या बता रहा है, c, इसलिए क्लियर है बात। तो n जो है वो एटॉमिक डेंसिटी है, वन डायमेंशनल चेन है, एटॉमिक डेंसिटी है ये, तो किसके बराबर आएगी, दैट वुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय लेंथ। बोलिए 1D चेन है ना, तो लेंथ से डिवाइड कर रहा हूं मैं, n क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, और l क्या है, लेंथ ऑफ सॉलिड। एक चीज पर जरा ध्यान दीजिए, अगर 1D सॉलिड है हमारे पास, तो हमारे पास n मूवेबल एटम्स है, हमारे पास 1D सॉलिड है, 1D चेन ऑफ एटम्स है, एंड देयर आर n मूवेबल एटम्स, n एटम्स मूव कर सकते हैं। तो हर एक एटम कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन देगा, हर एक कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन देगा, कितने फोनोन जनरेट करेगा हर एक एटम, हर एक एटम कितने मोड देगा, एक मोड देगा, क्योंकि 1D है ना, एक मोड में वाइब्रेट करेगा। तो टोटल मोड कितने होंगे पूरे इसके पास, पूरे सॉलिड के पास कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, कितने फोनोन होंगे, n होंगे या नहीं। तो नंबर ऑफ एटम्स ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ही क्या होते हैं बताओ, नंबर ऑफ एटम्स ही नंबर ऑफ फोनोन होते हैं, फोनोन होते हैं, एंड वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोड्स भी होते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। डिवाइस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ये, इट इज टॉकिंग अबाउट डिवाइस फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सिंस ये दिया हुआ है ओमेगा इक्वल्स टू सी के। ओके, तो हमें क्या निकालना है, डिवाइस फ्रीक्वेंसी, इंप्लाइज दैट डिवाइस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सी के डी, यहाँ के डी क्या है, डिवाइस वेव वेक्टर, डिवाइस वेव वेक्टर। ओके, अब आप जानते होंगे n का रिलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोड होते कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोड कितने होते हैं 1D में, जरा ध्यान करके बताइए कितना था, मैंने कहा था क्या था, L by 5। ओके, L by 5 इनटू क्या देखा ना, के, तो के की जगह क्या आ जाएगा, टोटल मोड कहाँ तक आ जाएंगे, टोटल मोड आ जाएंगे KD तक, KD। ओके, तो रख दीजिए इसको उसमें, ठीक है। तो KD का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, implies that what is the value of KD, KD value is n pi by L। तो ओमेगा D कितना हो गया, implies that ओमेगा D is G pi C n by L, n by L की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल n, तो कितना आ रहा है pi C स्मॉल n, ये डिवाइस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो चाहे आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, तो आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं, तो इक्वेशन 3 कह सकते हैं। Any answer is matching or not? ये हमने क्या मानते हुए किया था, नॉन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए ये हमने क्या किया था, ठीक है, एसिमेट्रिक के लिए किया था, ये हमने किया था एसिमेट्रिक के लिए। दिस इज फोर सॉलिड एक्सटेंडिंग फ्रॉम, इट इज फॉर अ सॉलिड एक्सटेंडिंग फ्रॉम x equals to 0 to x equals to L, है ना। अब चूंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ 4 सिमेट्रिक सॉलिड, सिमेट्रिक सॉलिड में एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है, लेट्स से -n/2 टू, उस केस में केडी क्या लगता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मोड्स क्या आते हैं, L/2 के, k की जगह जाएगा KD, implies that KD is 2 pi n by L. This is our equation number 4.
अब ओमेगा डी जो होगा वो क्या होगा, सी के डी तो आएगा 2 पाई सी के डी के जाएगा n बाई एल जाएगा 2 पाई सी स्मॉल n, क्वेश्चन नंबर 5 है काम का कोई ओके ये होगा। यहाँ पर हमने कहीं लिख दिया n बाई एल क्या होगा, यहाँ n बाई एल क्या है, Small n. एटॉमिक डेंसिटी, Atomic density. वन डायमेंशन में एटॉमिक डेंसिटी, इट इज एटॉमिc डेंसिटी 1D। ओके ये हो गया। तो डिवाइड फ्रीक्वेंसी निकालनी हमने कितनी 1D की, क्या हम 2D के लिए भी कर सकते हैं इसको, यस वी कैन डू इट। क्या हम यहाँ से डिवाइड टेम्परेचर निकाल सकते हैं, कैन वी फाइंड डिवाइड टेम्परेचर फ्रॉम हियर। अगर एग्जामिनर ने कहा होता है इसका डिवाइड टेम्परेचर निकालो, चलो पहले पीछे निकाल देते हैं। इस केस में डिवाइड टेम्परेचर कितना होता है फ्रॉम इक्वेशन 3, आप जानते हैं क्या, h क्रॉस ओमेगा d किसके बराबर होता है, Kb into theta d. theta d, theta d is the divide temperature, theta d is the divide temperature, so theta d is divide temperature। निकालना जरा कितना डिवाइड टेम्परेचर आएगा, एस्पेक्ट बाय केबी बाय सी है, और ये मल्टीप्लाई में आएगा ना, h क्रॉस पाई सी एन डिवाइडेड बाय केबी। ये हमारा डिवाइड टेम्परेचर आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो डिवाइड टेम्परेचर है वो एटॉमिक डेंसिटी पर किस तरह डिपेंडेंट है, ऐसा जरूर पूछ सकता है। डिपेंडेंट कैसी है उसकी, इस तरह की प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, 1 पावर है। ओके ये हो गया। ये क्या मानते हुए डिवाइड टेम्परेचर है, अगर आप इसको सॉलिड को 0 से L तक एक्सटेंडेड मानते हैं, यहाँ डिवाइड टेम्परेचर क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 5, व्हाट इज डिवाइड टेम्परेचर, वी नो दैट टाइम हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा d इक्वल Kb थीटा d। इस केस में जो डिवाइड टेम्परेचर होगा, डिवाइड टेम्परेचर would be h cross times the 2 pi Cm into h cross divided by Kb। ठीक, तो डिवाइड टेम्परेचर हमने निकाल लिया। इसमें भी आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी थे। नाउ विल मूव टू 2D। अगर कहीं से भी क्वेश्चन में 2D आ जाए तो क्या करोगे, तो 2D सॉलिड, तो 2D सॉलिड, 2D सॉलिड में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ n जो होता है दैट इज L by 2 pi square k square। पाई के, सो L स्क्वायर वुड बी एरिया, एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो एक के स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट वुड बी 4 पाई। अब चूंकि सारे मोड कब तक आएंगे, सारे मोड तभी काउंट में आएंगे जब ये k क्या हो, kd हो। implies that kd है वो क्या बन गया, kd has become 2 root pi 2 बार pi, ओके, n by a, पावर कितना 1/2। n by a कितनी तरह काम करेगा, क्वेश्चन नंबर Atomic density. एटॉमिक डेंसिटी 2D है ना, तो n by a वर्क क्या है, एटॉमिक डेंसिटी ऑफ व्हाट, 2D सॉलिड। इस kd को उठाओ और ओमेगा d, डिवाइड फ्रीक्वेंसी कितना हो गया था, डिवाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2D ओमेगा d इक्वल टू c। अगर t कितनी यूज कर रहे हैं, स्पीड ऑफ फोटॉन c दे रखी है, तो ये क्या होगा ओमेगा d kd, kd का वैल्यू भर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2c पाई n बाय एरिया पावर 1/2। अगर हम इस एटॉमिक डेंसिटी को स्मॉल n लिख लें फिर से तो कितना हो जाएगा, इट वुड बिकम ओमेगा d इक्वल टू 2c, ओके, इट वुड बिकम n पाई पावर 1/2। ठीक, तो डिवाइड फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस कितना है एटॉमिक डेंसिटी का, पावर 1/2। अब डिवाइड टेम्परेचर निकालते हैं 2D का, 2D का डिवाइड टेम्परेचर, तो डिवाइड टेम्परेचर क्या होगा, डिवाइड टेम्परेचर थीटा d would be h cross omega d by kd, so it would become
2h cross c over kb pi n power n by। ओके, यहाँ पर जो डिवाइड टेम्परेचर है 2D वाला, उसका एटॉमिक डेंसिटी का किस तरह प्रोपोर्शनलिटी है, रूट n। यहाँ का डिपेंडेंस था, इट वाज प्रोपोर्शनल टू n 1D के लिए, बट इन केस ऑफ 2D इट हैज बिकम अंडर रूट n। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम 3D पर जाएंगे तो आपको पता लग गया होगा क्या डिपेंडेंस अब होनी चाहिए। तो 3D सॉलिड n power 1/3 टोटल नंबर ऑफ मोड्स क्या n would be L over 2 pi whole cube 4 by 3 pi k cube। तो L cube means volume divided by नीचे 4 6 रह जाएगा, pi square रह जाएगा, k cube, k का cube का मतलब है kd cube, so it would give you kd क्या है kd 6 pi square, ओके ये बनेगा 6 pi square n by volume, 6 pi square n by volume power 1/3। क्वेश्चन नंबर 10, n by v is atomic density in 3D solid। इसको अगर हम स्मॉल m से लिखते हैं, kd निकल गया हमारा, डिवाइड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, डिवाइड ओमेगा d इक्वल्स टू pkd, so डिवाइड फ्रीक्वेंसी होगी c 6 pi square n by v पावर 1/3। क्या डेंस डिपेंडेंस आएगी 6 pi square n power 1/3, which is equation number 11। ओमेगा d इक्वल टू बताओ, स्लाइड बैक करने का। ओके थैंक यू। डिवाइड टेम्परेचर की लास्ट पॉइंट है, ये मैंने एक्सटेंड करा दिया, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, मैंने 3 डायमेंशन के लिए कर लिया क्वेश्चन। डिवाइड टेम्परेचर होता है थीटा डी cos ओमेगा डी ओवर के डी, कितना हो जाएगा h क्रॉस डिवाइड बाय के डी 6 pi square n पावर 1/3। डिवाइड टेम्परेचर का डिपेंडेंस एटॉमिक डेंसिटी 3 डायमेंशन के लिए होता है n पावर 1/3। ये होता है, ठीक है, 1D के लिए प्रोपोर्शनल टू n, 2D के लिए 1/2, 3D के लिए 1/3। सेवन हमने कर लिया था क्या असाइनमेंट नंबर 2 का, हाँ ये कर लिया, 68 69 कर लिया असाइनमेंट नंबर 3 में 1 कर लिया था, 2 कर लिया था, 3 कर लिया था, 4 नहीं था। पेज में पेज नंबर होगी 90। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ फेल्स नियर रूम टेम्परेचर। ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ फेल हो जाता है रूम टेम्परेचर के पास 300 केल्विन पर। तो टेम्परेचर का वैल्यू है 300 केल्विन फॉर मेनी लाइट एलिमेंट सच दैट बोरोन एंड बेरिलियम, ठीक है, बिकॉज देयर डिवाइड टेम्परेचर। तो देखिए जरा क्लासिकल थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ, ठीक है। फेल्स एट वेयर, टेल मी, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर वेयर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर
टेम्परेचर इज लेस देन थीटा डी या मोर ग्रेटर देन थीटा डी। लो टेम्परेचर ऐसी जगह पर फील होता है, फील। ओके, टेम्परेचर T कितना दिया हुआ है, 300। तो इन सॉलिड के डिवाइड टेम्परेचर क्या होंगे बताइए? 300 केल्विन से बहुत ज्यादा होंगे या कम होंगे? बोलो, 300 केल्विन से बहुत ज्यादा या बहुत कम? ज्यादा होंगे। ये ऑप्शन सही होगा। फोर हो गया था, 5 4 कर लिया, 5 6 7 कर लिया, 8 बाद में कर लिए, 9। Let specific heat of crystalline solid can be obtained using Coulomb-Pettit law, यानी कि क्लासिकल मॉडल, आइंस्टीन मॉडल एंड डेबाय मॉडल। ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा? लो लो, लो लिखा हुआ भी है उन्होंने, लो टेम्परेचर पर। Coulomb-Pettit लॉ क्या कहता है? कांस्टेंट कहता है। आइंस्टाइन क्या कहता है? एक्सपोनेंशियल एंड 1/t स्क्वायर बिहेवियर कहता है। डीवाई क्या कहता है? dq। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। 6 पेज नंबर 19 से 11 नंबर। पेज 19। डिवाइड टेम्परेचर ऑफ 19 में नहीं 20 है पेज। तो ये भी पेज 20। डिवाइड टेम्परेचर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड आर दी। मान लीजिए कॉपर का जो डिवाइड टेम्परेचर है उसको हम क्या कह रहे हैं? थीटा D1, और इसको हम कह रहे हैं थीटा D2। गोल्ड को हम 2 मान रहे हैं, कॉपर को हम 1 मान रहे हैं। स्पेसिफिक हीट दी हुई है तो गोल्ड की स्पेसिफिक हीट पूछी हुई है। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर तो हाई की कैटेगरी में आता है। रूम टेम्परेचर तो भाई हाई टेम्परेचर की कैटेगरी में आता है। रूम टेम्परेचर पर तो सबकी स्पेसिफिक हीट कितनी होनी चाहिए? कांस्टेंट 3R होनी चाहिए ना। तो अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 1.5 है ना, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गोल्ड भी 1.5 होनी चाहिए। तो उसका R अलग हो सकता है, R अलग हो सकता है उनका R अलग हो सकता है। क्यों R अलग हो सकता है? क्योंकि R के अंदर क्या इन्वॉल्व था? NKB। नंबर ऑफ एटम्स अलग हो सकते हैं। बात कुछ जमीन है। मैं लो करके देखो टेम्परेचर, लो करता तो क्या होता? एट लो टेम्परेचर क्या होता है बताना? CV प्रोपोर्शनल TQ। CV इज प्रोपोर्शनल टू थीटा D। नीचे आता है ऊपर? बोलो, थीटा D तो नीचे आता है ना भाई? नीचे नहीं, T ओवर थीटा D होता है ना? हाँ यस। इन्वर्स होता है ना? तो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 कौन लिया हमने? 1 इज कॉपर को 1 माना, गोल्ड को 2। ये दिया हुआ कॉपर का, तो क्या बनेगा? थीटा D2 ओवर थीटा D1 होल क्यूब। देख लेते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको, मुझे नहीं पता ये क्या दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है थीटा D2 कितना है? 170, और ये कितना है? 340। क्यूब कितना बन गया है? 1/2।
इसको मैंने कहा है 1, इसको मैंने कहा है 2। ओके, क्या बन रहा है? 1/2 तो 1/8 बन रहा है नहीं? तो CV2 कितना आया? 8 गुना है कितना? 1 का। तो 1.5 इंटू 8 कितना होता है? 12 बनेगा नहीं? 12 किलो जूल, यूनिट क्या? किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ये बन रहा है। ऐसा कोई आंसर इसके लिए? इट इज फॉर गोल्ड और इट इज फॉर कॉपर? इट इज फॉर गोल्ड, है ना ऐसा आंसर? इसका मतलब एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है? लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर। ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, मुझे सारे क्वेश्चन याद रहते हैं, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है किसी का। इसको रूम टेम्परेचर खत्म कर दो, रूम की जगह आप लिखो लो टेम्परेचर। अब सही हो गया क्वेश्चन। हाँ जी, आपके फोर्थ क्वेश्चन जो अभी हमने किया था ना, उसमें हमने रूम टेम्परेचर को लो टेम्परेचर कंसीडर किया है। क्यों कंसीडर किया भाई? ये तो देख लो आप, क्वेश्चन में लिखा था ना, इसलिए। ये वाला किसके लिए था? लाइट एलिमेंट के लिए होता है ये, देखो जरा पढ़ के। ओके, सिर्फ लाइट एलिमेंट के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है? ये जितने भी अच्छे मेटल्स होते हैं ना, ये वाले कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इनका जो डिवाइड टेम्परेचर है ना, वो रूम टेम्परेचर से कम आता है। इनका जो डिवाइड टेम्परेचर है वो 150-200 केल्विन के आसपास होता है। रूम टेम्परेचर तो 300 केल्विन होता है। ओके, समझ रहे हो नहीं? यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर पता लगा आपको? यस सर। ये कह रहे हैं ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ फेल्स नियर रूम टेम्परेचर फॉर मेनी लाइट एलिमेंट। ये किसके लिए सही है ये वाली बात? लाइट एलिमेंट के लिए, भारी एलिमेंट के लिए नहीं। कॉपर 29 काफी भारी है, गोल्ड भी उधर भारी है, ओके, उनके लिए सही नहीं है इधर। तो हम लो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इन सबका डिवाइड टेम्परेचर रूम से कम होता है। ओके, तो आप समझिए भारी एलिमेंट्स के लिए, यानी कि मेटल्स के लिए, जो अच्छी अच्छी मेटल्स हैं, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ओके, इन सब के लिए रूम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर माना जाएगा या लो? रूम टेम्परेचर हाई माना जाएगा। ओके, फॉर गुड मेटल्स रूम टेम्परेचर वुड बी कंसीडर्ड एज हाई टेम्परेचर। ये भी पेज 20 करिए। नेक्स्ट में आया क्वेश्चन है, कंसीडर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, one of which has a simple cubic structure, जिनमें से एक का स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक है, अदर हैज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, दूसरे का स्ट्रक्चर टेट्रागोनल है। आप जानते होंगे क्यूबिक में टेट्रागोनल में क्या फर्क है, पता ना? A equals to B equals to not equal C। सिंपल क्यूबिक में और टेट्रागोनल में सिर्फ डायमेंशन का फर्क है। सिंपल क्यूबिक में तीनों डायमेंशंस बराबर होती हैं, जबकि टेट्रागोनल में A equals to D not equals to C होता है। यूजुअली जो है ना, C बड़ा होता है। यूजुअली जो C है वो A एंड B से बड़ा होता है। ऐसा आर्डर बात नहीं है, बट ऐसा यूजुअली होता है जनरली टेट्रागोनल में। ओके, बात समझ आ गई? आगे चलते। इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट बिटवीन एटम्स इन C डायरेक्शन, यानी कि जो इक्वल वाली नहीं है, इज हाफ द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट बिटवीन एटम्स इन द A एंड B डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है राफंदार, ये वाली लाइन? ये कह रहा है जो स्प्रिंग कांस्टेंट है C, जिसको हम C लेकर चल रहे थे ना, कैपिटल C, आप जानते हैं ये ऐसा वाला बोल रहा हूँ, F equals to F was proportional to C ना, F was proportional to K, ओके, और क्या बनता है यहाँ पर? CK, ओके। यहाँ पर C क्या है? C क्या है यहाँ? स्प्रिंग कांस्टेंट। इस कैपिटल C की बात कर रहा हूँ। कैपिटल C जो है, ये कह रहे हैं किस डायरेक्शन का? ये कह रहे हैं जो C डायरेक्शन है, C डायरेक्शन, ओके, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट A वाली डायरेक्शन के स्प्रिंग कांस्टेंट का आधा है, और B वाले के का भी आधा है। A और B का सेम है, क्यों? क्योंकि वो डायमेंशन बराबर है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं फोर्स, इट इज व्हाट, ये क्या होता है? फोर्स पर
यूनिट लेंथ, यानी कि एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना उसको पर यूनिट लेंथ करना है। तो जब डायमेंशन बड़ी हो जाती है ना तो फोर्स कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? उस तरह ज्यादा। ज्यादा कैसे लगेगा भाई? कम लगेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, कम या ज्यादा? स्प्रिंग कांस्टेंट उस तरफ कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा ना? नहीं बात समझ में आ रही? अरे भाई दो ए और बी डायरेक्शन में तो ऐसे है, मान लिया एटम तो स्फेरिकली होता है, ए और बी डायरेक्शन में तो यूं है एटम, ओके ऐसे टच कर रहे हैं आपस में। और सी डायरेक्शन में क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये सी है, ये डायरेक्शन ए है, ये डायरेक्शन सी है, ओके डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। तो किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा आप मुझे बताओ भाई? बी में सर। ए वाले में फोर्स ज्यादा लगेगा और सी वाले में फोर्स कम लगेगा। क्यों क्यों लगेगा कम? लेंथ आप देख रहे हैं ना जो सी डायमेंशन है यहाँ पर, जो सी डायमेंशन है यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ सी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है ए। तो चूंकि सी ज्यादा है ए से इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, पर यूनिट लेंथ है ना, तो लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी ना फोर्स कांस्टेंट उतना ही कम होगा। ओके तो यहाँ पर ऐसे लिया गया है, क्लियर है बात? ठीक है तो वो कह रहे हैं एट लो टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ लैटिस कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट। तो अब ये बताओ लैटिस स्पेसिफिक हीट का जो बिहेवियर है वो डायमेंशन डिपेंडेंट होता है क्या? बोलो। यस सर। होता है ना, गो बैक एंड सी डी बाई एस है ना, डी बाई एस। अगर सॉलिड 2D हो तो बिहेवियर क्या आएगा, टी स्क्वायर या टी क्यूब? टी स्क्वायर। और अगर सॉलिड